ओके, सो हम लोग EM वेव्स कर रहे थे एंड आई वाज टेलिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव्स। उससे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट करंट का डिस्कशन किया था। डिस्प्लेसमेंट करंट was the quantity epsilon naught d by dt of the electric flux. So if in a region there is an electric field that is time varying, then that also contributes to the creation of a magnetic field, right? Then we are discussing the properties of EM waves. I had told you a few properties ki E and B are mutually perpendicular. The direction of propagation is given by E cross B, right? And E and B are in phase, and the magnitudes are also related to each other via two equations, that the magnitude or the amplitude of E is C times magnitude of B, and the magnitude of B is C mu naught epsilon naught E. And from these two equations we get the speed of this wave as 1 over mu naught epsilon naught, right? Which if you put the value there, you find that it comes out to be the speed of light. So that is how they realized that light was an EM wave, right? Then the other thing is that you can also find the intensity of light in terms of the electric and magnetic field. So first of all, तो हम लोग ये तो ऑलरेडी देख चुके हैं कि किसी भी वेव का जो इंटेंसिटी होता है वो उसके एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है, राइट? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस. वी हैव सीन दिस फॉर द एग्जांपल ऑफ साउंड, वेयर द इंटेंसिटी वाज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. ठीक है, इफ यू रिमेंबर साउंड के केस में इंटेंसिटी वाज delta p naught square by 2 rho c. So it was found to be proportional to the amplitude square. And I had generally said that it is true for all waves, that the intensity of the wave is proportional to the square of the amplitude. So we can also see that it is the case for light. मैंने उस टाइम पे बस बोल दिया था कि हाँ, it is the case for light, but we can actually find it out now that we know that it is an EM wave. So the way to find it is, first of all, तुम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो एनर्जी का डेंसिटी होता है, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो तुम ऐसे लिखते हो, half epsilon naught E square. Have you guys done this? Yes, sir. Right. Similarly, you will see once you study more magnetism is that magnetic field में भी energy density होती है, and that is written as B square by 2 mu naught. ठीक है, you will see this also later when you study EMI. So just as the electrical field has some energy density which is proportional to the square of the electrical field, the magnetic field also has an energy density which is proportional to the square of the magnetic field. जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशनशिप्स जो होते हैं, फॉर्मूलाज जो होते हैं, वो काफी सिमिलर होते हैं, एंड एक्सेप्ट फॉर द डिफरेंस इन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट अकरिंग इन म्यूचुअली रिवर्स प्लेसेस, क्योंकि फंडामेंटल लॉ में भी वो उल्टा आते हैं. इलेक्ट्रिसिटी का जो लॉ है, कूलम्स लॉ, उसमें एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में आता है. when you write force between two charges or you write field or whatever, electrical field, then you write it as q by 4 pi epsilon naught r square. जबकि जब तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो उसमें तुम देखते हो कि म्यू नॉट न्यूमरेटर में आता है, म्यू नॉट करंट बाय 4 पाई वॉट एवर डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यूब, राइट? सो
they are quite analogous. The expressions for the E field and the B field are quite similar. 4 pi इसमें भी है, denominator में 4 pi इसमें भी है, ये करंट की चार्ज के प्रोपोर्शनल है, करंट के प्रोपोर्शनल है, ये भी 1 by r square फील्ड है, ये भी 1 by r square फील्ड है. लेकिन जनरली स्पीकिंग एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट are always in flipped places. If that is in the denominator, this is in the numerator and vice versa. So you can see that here also, that the energy density of that field is proportional to the square of that field. There is a factor of half, and then here epsilon naught is in the numerator and mu naught is in the denominator. ठीक है, तो ये तो हो गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. अब मान लो कि एक EM वेव जा रहा है, ये डायरेक्शन है उसका प्रोपगेशन का, ठीक है, सम EM वेव इज प्रोपगेटिंग इन दिस डायरेक्शन, जिसमें E और B जो है उनके एम्पलीट्यूड्स ये हैं. तो एक डायरेक्शन में जो है E ऑसिलेट कर रहा होगा और उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में B ऑसिलेट कर रहा होगा, राइट, लाइक दिस. And then we want to find out, let's say there is a region of space which is initially completely empty, the EM wave has not even gone there, and so there is no energy in this region. ये C से propagate कर रहा है speed of light से, और इसका cross section एरिया मान लो A ले लो. हम इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम निकालना चाहते हैं, राइट. तो EM वेव जा रहा है और एक रीजन में एंट्री करेगा जो अदरवाइज अभी तक नॉन एनर्जाइज रीजन है, कंप्लीटली एम्प्टी स्पेस है, उसमें कोई एनर्जी नहीं है, ना उधर इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड है. बट जब ये EM वेव अंदर घुसेगा तो ये वहां पे एनर्जी फिल करेगा, तो मैं वो फाइंड करना चाहता हूँ. तो अगर dt टाइम में वो इसमें चलेगा तो ये जो लेंथ है डब्बे का, ये c dt हो जाएगा, c बीइंग द स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, तो टोटल एनर्जी इन द बॉक्स कितना हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इनटू डब्बे का वॉल्यूम, बराबर. तो अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूं तो ये टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम हो जाएगा, और फिर अगर इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से भी डिवाइड कर दूं तो फिर ये एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम हो जाएगा. तो देयरफॉर जो इसका इंटेंसिटी आ जाएगा वो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट टाइम्स C. मेक सेंस? A और dt से डिवाइड करके पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. ठीक है, फेयर इनफ. Now the thing is that E and B are themselves sinusoidal functions, करेक्ट. लोकली तो इसकी वैल्यू कुछ कुछ होगी, कहीं पे साइन मैक्सिमम होगा, कहीं पे साइन मिनिमम होगा. सिमिलरली B, assuming कि E and B are both sine functions, right? सर ये तो अभी भी मेंस ओनली चल रहा है ना? हाँ, मेंस ओनली टॉपिक है. तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इनमें से एक रिलेशन को यूज करके इसको लिख सकता हूँ किसी एक फील्ड के फॉर्म में, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये मैग्नीट्यूड्स के बीच में भी हैं इनके, और एक्चुअल फंक्शंस के बीच में भी हैं, क्योंकि दोनों फेज में होते हैं. तो मान लो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा E मान लो तुम्हारी एक्स एक्सिस है, तो तुम्हारा E जो है which is a function of x and t, it's a wave along the x axis just like wave on a string, so it's a function of x and t. Is E naught sin kx minus omega t, then B xt is B naught sin kx minus omega t. दोनों का ये वाला पार्ट एकदम आइडेंटिकल है, ये हम पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं. क्यों? क्योंकि वो एकदम फेज में है, और दोनों के मैग्नीट्यूड्स जो हैं वो इस तरीके से रिलेटेड है. तो क्योंकि मैग्नीट्यूड्स इस तरीके से रिलेटेड हैं और बाकी फंक्शनल पार्ट एकदम आइडेंटिकल है, तो देयरफॉर ये एक्चुअल फंक्शंस भी इसी तरीके से रिलेटेड है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मतलब it is correct to say also that ext is cbxt and bxt is mu naught epsilon naught c ext, है ना. तो यहाँ पे दोनों फंक्शन है अभी,
मैं एक्चुअली इंटेंसिटी निकालने के लिए मेरे को इसका एवरेज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी का डेफिनेशन होता है एवरेज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी का डेफिनेशन में एवरेज आता है, तो मेरे को एवरेज करना है। तो एवरेज करने के लिए मेरे को इसको साइन स्क्वायर में डाल दूंगा। मान लो मैंने डाल दिया यहाँ पर कि हाफ आ गया बाहर, सी आ गया बाहर, और दोनों में से साइन स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। और उसी का एवरेज हो रहा होगा, क्योंकि सी कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये सब एक्स टी के फंक्शन है, ई बी सी, ई और बी और right? तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा ई नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे ई नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे बचेगा बी नॉट स्क्वायर बाई बी नॉट। साइन स्क्वायर का एवरेज कितना होता है? हाफ। तो ये हो गया c/4। अब इनमें से किसी भी एक को दूसरे में सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। सो लेट मी राइट इट इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो मैं बी नॉट को लिख रहा हूँ ई नॉट बाई सी, हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर बाई सी नॉट स्क्वायर म्यू नॉट, which you will find is the same thing as epsilon naught e naught square, क्योंकि c स्क्वायर जो है वो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो μ0 कट जाएगा, फिर बन जाएगा c/4 इंटू ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट e नॉट स्क्वायर। करेक्ट? therefore it finally gives you that the intensity average power per unit area, average power per unit area आवाज आ रहा है तुम लोगों को? हाँ सर। ठीक है। So again you can see that the intensity is proportional to amplitude का square. This time the amplitude is the amplitude of the electric field, or you could have expressed this, which is the same thing as b naught square c by 2 mu naught. You can check, e को c भी डाल दो, c square हो जाएगा, c square को 1/μ0 epsilon naught डाल दो। So whether you write it in the form of the electrical field amplitude or the magnetic field amplitude, the intensity is proportional so just like for sound, it's the case for light that the intensity is proportional to the square of the amplitude. In this case, the amplitude is that of the electric or the magnetic field. ठीक है, ये तो इंटेंसिटी हो गया इसका। इस पे तुम्हें बेसिक क्वेश्चन आ सकता है कि वेव दे देगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी या व्हाटएवर, और इंटेंसिटी के बारे में कुछ पूछ लेगा। अब एक चीज और होती है, ये उतना स्ट्रिक्टली हमारे सिलेबस में नहीं, बट मैं बता देता हूँ, that another way to express this is called the pointing vector. Please note that this is not pointing but pointing. There is a y here. It's after a particular person, the name of a particular person. ठीक है, and this is a convenient way of expressing both the direction of propagation of the wave and its intensity. तो पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है वो s होता है, कैपिटल S, और उसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है E क्रॉस B बाय म्यू नॉट। ठीक है,
देखो प्रीवियस पेज। हो गया? पॉइंटिंग वेक्टर है वो इसलिए अच्छा है डेफिनेशन क्योंकि since it's a vector, it has a magnitude and a direction. The direction of the pointing vector is the direction of propagation of the wave. And the magnitude of the pointing vector is the intensity of the wave. तो मतलब पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन जो है वेव का डायरेक्शन है और पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेव का इंटेंसिटी है. So it's just a convenient mathematical thing to say that if I give you the pointing vector for a EM wave, I have basically told you all the relevant information about that wave. What is the relevant information about any wave? The direction in which it is going and how energetic it is. क्योंकि आगे जो तुम करने वाले हो उससे वो उन्हीं दो चीजों पे डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है और कितना इंटेंस है, लाइट कितना ब्राइट है और किधर जा रहा है, is basically all the information that you need. Correct? So the pointing vector has both of those informations encoded in it. तुम देख सकते हो इसका मैग्नीट्यूड अगर तुम निकालोगे E क्रॉस B by mu naught, तो एक तो क्योंकि E और B म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट सिंपली प्रोडक्ट है EB by mu naught है. और अगर तुम उनमें से किसी एक को दूसरे के फॉर्म में लिख लो, मान लो B को तुम E by C लिख लो, ठीक है, अगर B को तुम E by C लिख लो तो ऊपर E स्क्वायर हो जाएगा, नीचे C mu naught हो जाएगा, ऊपर नीचे C मल्टीप्लाई करके एप्सिलॉन नॉट ये बन जाएगा, ये बन जाएगा. सो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो यही क्वांटिटी होती है which is the intensity. और इसका डायरेक्शन ऑफ कोर्स सिंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट E क्रॉस B इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, तो mu naught से डिवाइड करने से कुछ फर्क तो पड़ता नहीं, केवल स्केल होता है वो, तो इट इज आल्सो करेक्टली द डायरेक्शन ऑफ द EM wave. So if somebody has to give you information on the wave in short, instead of saying that the wave is going along the direction 3i cap plus 4j cap plus blah blah and is of intensity itne watt per meter square, instead they can simply tell you what is the pointing vector for the wave. Somebody will say the pointing vector for a given light wave, light ray, whatever, is 2i cap plus 4j cap plus 7k cap. So that's two informations. The direction is which way is going and the magnitude of that vector is the intensity of that wave. ठीक है, all right, clear? Yes sir. अच्छा, तो अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं EM वेव का, which is the more important part of this is polarization. तो पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन जो है is a property of only transverse waves. ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है. अब मैं बताता हूँ पोलराइजेशन क्या है, सो यू विल सी फॉर योरसेल्फ कि लॉन्जिट्यूडनल वेव्स ought not to have. One second. Ought not to have any polarization.
but it's a property of only transverse waves, not longitudinal waves. So for example, sound cannot have polarization. Sound cannot be polarized, or it doesn't have any polarization, or there's no meaning to say what is the polarization. But for light, because light is a transverse wave, this is a transverse wave, right? You know that. क्योंकि ये जो वेव का प्रोपगेशन डायरेक्शन है वो एक तरफ है, लेकिन जो वेव में प्रॉपर्टी वेरी कर रही है वो किसी म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये ट्रांसवर्स वेव है. लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, therefore it has the property of polarization. Every transverse wave has the property of polarization, but it's most significant for light. For our purpose, for our daily, I mean, for human beings, the most, first of all, the most important wave, you could say one of the most important waves is light and sound, naturally, in our lives. So even a wave on a string, which is a transverse wave, will have the property of polarization, but that's really a wave of no significance in our lives, right? Nobody is dealing with wave on a string on a daily basis. I mean, if you're skipping a rope or whatever, light is everywhere. Everything is controlled by light. All your life is basically governed by light. So it makes it far more significant to discuss polarization in the context of light, right? तो क्या होता है polarization? Polarization का मतलब ये होता है कि let's say a light wave is coming. What is polarization? First of all, मैं पहले define कर देता हूँ. The plane in which the electric field oscillates in an EM wave is called the plane of polarization of the wave. मतलब, for instance, let's say that a wave is coming in this direction. ठीक है, तो उसका जो E field है वो अगर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, this is the E, और उसका B जो है ऑब्वियसली ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा. So that E cross B जो है वो इस तरफ आ रहा है. ठीक है, ये इस तरफ आ रहा है C से. तो ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, जिसमें उसका E field ऑसिलेट कर रहा है, this is the plane of polarization of the EM wave. Right? Meaning to say that if this wave is coming towards me, तुम लोग देख लो पहले पेज अगर कुछ लिख रहे हो. तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये EM वेव मेरी तरफ आ रही है, मतलब मैं इसको अगर इधर से देखूं, ठीक है, तो जो इसका ये जो प्रोपगेशन है इसको मैं कैसे दिखाऊंगा? कन्वेंशन ये है कि ये हम डॉट बना देते हैं और सर्कल बना देते हैं, जैसे तो मैग्नेटिज्म में भी देख रहे होगे. सो ये तुम्हारी तरफ आता हुआ EM वेव है. इसका जो E का ऑसिलेशन का प्लेन है वो ऐसे है, हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, राइट? और B का जो ऑसिलेशन का प्लेन है वो ऐसे है.
मतलब B जो है, are you able to understand, relate this drawing to this drawing? Yes, sir. कि अगर मैं डाउन द लाइन देखूंगा मेरी तरफ आते हुए वेव को, तो उसका जो ई जिस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, ऑब्वियसली जब मैं इधर से देखूंगा तो मेरे को साइन फंक्शन केवल लाइन जैसा दिखेगा सामने से। वो ऐसे तो वो ऑसिलेट कर रहा है, ई ऐसे बढ़ता है फिर कम होता है, ऐसे बढ़ता है फिर कम होता है, लेकिन इधर से देखूंगा तो ऐसा दिखेगा, ये ई का प्लेन है, और बी उसकी म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो मेरी तरफ से देख रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट करता हुआ दिख रहा है, तो ये बी का प्लेन है। तो ई एक प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, बी एक प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, और ये मेरी तरफ आ रही है वेव। तो ये जो प्लेन है जिसमें ई ऑसिलेट कर रहा है, इस प्लेन को इस वेव का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, दिस प्लेन इज कॉल्ड द this plane is the plane of polarization. तो इसलिए बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर लॉन्जिट्यूडनल वेव मेरी तरफ आ रहा रहता, कोई साउंड का वेव मेरी तरफ आ रहा रहता, तो क्योंकि उसमें जो भी मोशन हो रहा है वो इसी डायरेक्शन में हो रही है, ऐसे कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं हो रहा है, तो there is nothing to talk about in this direction. It is all the same. The wave is coming towards me and things are also oscillating like this. But with the transverse wave, the wave is coming towards me, things can oscillate like this. They can also oscillate like this. If you forget the B field, only focus on the E field, तो ये ऐसा भी हो सकता था कि ये मेरी तरफ आ रहा है, लेकिन इसका जो E field है वो इस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है. That's another polarization. That's a differently polarized wave. There is a difference between these two, right? So there is a property that can be different as seen from the front. So I have to distinguish between this and this. That is why I have the concept of polarization, to say that this has a different plane of polarization and this has a different plane of polarization. In a longitudinal wave, of course, there is nothing happening in this direction. All of it is happening like this. So they are all identical. Any longitudinal wave coming towards me is basically the same thing. But a transverse wave coming towards me, even for a wave on a string, अगर वेव ऑन स्ट्रिंग मेरी तरफ आ रही है तो उसमें हो सकता है रस्सी ऊपर नीचे चलाया हो तो मुझे ऐसा आता हुआ दिखेगा, हो सकता है रस्सी हॉरिजॉन्टली चलाया हो तो ऐसा आता हुआ दिखेगा, हो सकता है एंगल पे चलाया हो तो ऐसा आता हुआ दिखेगा. तो ये सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं किसी सेंस में, क्योंकि इनके सबके प्लेन ऑफ पोलराइजेशन अलग अलग है. सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन, दैट द प्लेन इन विच द ऑसिलेशन इज हैपनिंग कैन बी ओरिएंटेड डिफरेंटली व्हेन द वेव इज सीन फ्रॉम द फ्रंट. दैट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द थिंग. ये इसलिए रेलेवेंट होता है, ऑल्दो एक्चुअली हम लोग ज्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ने वाले हैं, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज इट इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग आइडिया. क्योंकि लाइट का जो बिहेवियर है, लाइट का ईएम वेव बिहेवियर हम ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं, इवन तो तुम लोग ईएम पढ़ने वाले हो, लेकिन उसमें तुम डायनामिक्स बहुत कम पढ़ने वाले हो. सो यू आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन टू मच डिटेल व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट इंटरैक्ट्स विद मैटर, व्हाटएवर. लाइक फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. व्हाई विल light when it arrives at a surface bend like this, or why will TIR occur or something. तो जो EM basis of optics है वो तुम नहीं पढ़ रहे हो, which is really the crux of electromagnetism, कि light का behavior को कैसे explain किया जाए from the point of view of light being an electromagnetic wave and from the laws of electromagnetism. But anyway, point ये है कि उसका electric field कौन से plane में oscillate कर रहा है, that has an impact on the overall outcome. For example, just to give you one example of why polarization is relevant or why it makes a difference. अगर कोई इंटरफेस है, मान लो एयर वाटर इंटरफेस है, और एक लाइट रे आया, तो ठीक है कि कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट करेगा और उसका एक पर्टिकुलर लॉ है, स्नेल्स लॉ, और बाकी पार्ट उसका रिफ्लेक्ट करेगा और उसका भी एक लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. लेकिन 100% में से 30% रिफ्लेक्ट होगा और 60% ट्रांसमिट होगा, व्हाटएवर 70% ट्रांसमिट होगा, या 50-50 होगा, या 40-60 होगा, या व्हाटएवर होगा.
वो अल्टीमेटली इवन दो लाइट सेम एंगल पर आएगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं सेम रख रहा हूँ, लेकिन ये जो लाइट रे आ रही है सरफेस पे, ये सरफेस पे किस पोलराइजेशन पे आ रही है, क्योंकि यू कैन इमेजिन कि इसका पोलराइजेशंस के कई सारे ऑप्शन। नाउ इट्स रियली हार्ड टू ड्रॉ इट इन अ 3D इन दिस, मे बी आई कैन शो इट लाइक दिस। लेट्स से दिस इज द इंटरफेस, ठीक है, नीचे इसके पानी है, ऊपर एयर है, और हमारा लाइट रे जो है नॉर्मल से एक सर्टेन एंगल आई पे आके इधर से पड़ रहा है, ठीक है। तो एंगल भी फिक्स कर दिया मैंने कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस फिक्स्ड है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फिक्स है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फिक्स्ड है, क्योंकि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे केवल डिपेंड करता है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी फिक्स्ड है नीचे की तरफ, क्योंकि वो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और म्यू पे डिपेंड करता है। लेकिन जो परसेंटेज स्प्लिट है कि कितना परसेंट रिफ्लेक्ट होगा और कितना परसेंट ट्रांसमिट होगा, वो पोलराइजेशन पे डिपेंड करता है। ये लाइट वेव जब यहाँ आ रही है तो क्या इसका पोलराइजेशन का प्लेन ये वाला है या ये वाला है, क्योंकि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, राइट। तुम लोग समझ रहे हो, इस सरफेस पे आके लाइट करे एक पर्टिकुलर एंगल पे पड़ रहा है, तो कीपिंग दैट एंगल द सेम, I know that light will reflect at the same angle and niche refract at a particular angle. Those quantities are fixed. They are only dependent on the angle of incidence. But how much of the light will reflect and how much of the light will transmit depends on the polarization of this wave. Whether the electric field in this wave is oscillating like this or like this, or as a combination of the two. ठीक है? So that is the kind of thing where polarization becomes relevant for light. Light का बहुत सारा behavior जो है, how much of the, जैसे हमने wave on a string में ही पढ़ा था, हमारा wave on a string तो one dimensional wave था, लेकिन उसमें हमने पढ़ा था reflection coefficient, transmission coefficient जो है वो depend करते हैं on the two media. Light के case में not only do they depend on the two media, they also depend on the plane of polarization of light. This is something we are not going to discuss, but I'm just telling you the practical application of polarization. Why is it important to discuss or understand polarization? Because it controls the actual phenomena of light. For example, it controls the proportion of reflected and refracted light. ठीक है, तो anyway, leaving that aside, अब क्या होता है कि, and please understand कि plane of polarization हमेशा electrical field के साथ identify होता है, arbitrary है, हम magnetic field के साथ भी plane of polarization identify कर सकते थे, इनमें से किसी का भी plane पता हो तो दूसरे का plane automatically पता होता है, तो हमने E के साथ रखा हुआ है कि E का जो plane है वही इस wave का plane of polarization है। अब होता ये है कि जो naturally produced light होती है in general most often, like light from sun or light from a flame or light from a filament or whatever, तो उस लाइट के साथ क्या होता है कि, एक सेकेंड, तो नेचुरल जो लाइट होती है उसके साथ ये होता है कि जो उसका कोई पर्टिकुलर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन नहीं होता है। उसका कारण ये है कि किसी भी नेचुरल, फॉर एग्जांपल फिलामेंट है, ठीक है, अब इफ यू रिमेंबर हमने कभी डिस्कस भी किया था ये रफली स्पीकिंग, कि जब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़े थे कि चार्ज के ऑसिलेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, राइट। तो चार्ज जैसा ऑसिलेट करेगा वैसा ही उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर चार्ज ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा तो ऐसा ऐसा प्लेन में इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा, अगर चार्ज ऐसे ऑसिलेट करेगा। अब एक मैक्रोस्कोपिक मटेरियल लाइक अ फिलामेंट जो है किसी बल्ब का, मान लो तुम्हारे पास एक रेगुलर बल्ब है, इनकैंडेसेंट बल्ब है, ठीक है, तो इसके अंदर जो है, जो लाइट इसमें से निकल रही है, वो लाइट में कोई यूनिक प्लेन ऑफ पोलराइजेशन नहीं होगा। उसमें कुछ लाइट का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ये होगा, कुछ लाइट का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ये भी हो सकता है। सिर्फ मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात कर रहा हूँ। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मैक्रोस्कोपिक मटेरियल है,
और इस मटेरियल के अंदर कोई भी चार्ज जो ऑसिलेट करेगा वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो किस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, क्योंकि ये रैंडम थर्मल मोशन है, क्योटिक मोशन है। तो हो सकता है कोई चार्ज अंदर ऐसा ऐसा ऑसिलेट करे तो उसमें से ऐसा वेव निकले, हो सकता है कोई चार्ज व्हेन यू जूम इनटू द फिलामेंट, when you zoom into this filament too much, you find that the filament is a thick thing like this. ये फिलामेंट है तुम्हारा, और फिलामेंट के अंदर चार्जेस हैं जो अपनी जगह पे रैंडम chaotic मोशन कर रहे हैं, और इन्हीं से EM वेव निकल रही है। अब कोई चार्ज अप डाउन मोशन कर सकता है, तो अगर ये अप डाउन मोशन कर रहा है तो इससे अप डाउन वेव निकल रही है। कोई अगर बैक और फॉरवर्ड मोशन कर रहा है तो उससे बैक और फॉरवर्ड वेव निकल रही है। कोई और किसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है तो उससे, तो जो लाइट टोटल निकल के आ रही होगी किसी ऐसे बॉडी में से, वो जनरली अनपोलराइज लाइट होगी। फ्रॉम अ मैक्रोस्कोपिक सोर्स is unpolarized. That is, has many different planes of polarization. मैक्रोस्कोपिक सोर्स में से होगा क्योंकि उसमें कई सारे चार्जेस होंगे और चार्ज किस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा ये कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, एक सिंगुलर चार्ज जब ऑसिलेट करेगा तो उसमें से तो पोलराइज लाइट ही निकलेगी, क्योंकि या तो वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा या वो आगे पीछे ऑसिलेट करेगा। लेकिन एक कलेक्शन ऑफ चार्जेस जो है, एक कोई भी मैक्रोस्कोपिक सोर्स जो है इज अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस, और वो सारे चार्जेस रैंडम डायरेक्शंस में मोशन कर रहे हैं, तो उसमें से अनपोलराइज लाइट लिखेगी। तो अनपोलराइज लाइट जो है वो कैसी दिखेगी, सामने से आती हुई ऐसा है, और उसमें ऑल पॉसिबल प्लेन्स ऑफ ई होंगे। याद रखो कि ये एक ही चार्ज से निकला हुआ फील्ड नहीं है, ये हमारा कन्वेंशनल ड्राइंग है इसका। तुम लोग समझ रहे हो ड्राइंग का मतलब क्या हुआ? Do you guys understand this drawing? Yes, sir. ठीक है। तो ये जो है प्लेन पोलराइज लाइट है या पोलराइज लाइट है, क्योंकि इसमें एक यूनिक प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, राइट? लाइट with a unique plane of polarization is called plane polarized, or simply polarized. Light with no unique plane of polarization, with many different planes of polarizations, is called unpolarized light. ठीक है, तो अब जो है क्या होता है कि वी वांट पोलराइज लाइट फॉर वेरियस रीजंस। वी वांट पोलराइज लाइट, हमारी आंखों में जब जाता है लाइट तो उसके लिए भी उसका पोलराइज्ड होना बेटर होता है। फॉर नंबर ऑफ रीजंस लाइट हैज टू बी पोलराइज्ड, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट. So that's why, and since natural light is usually unpolarized, natural light from wherever sun and every place is unpolarized, we would like something that can take unpolarized light and make it into polarized light. That thing is called a polarizer. ठीक है, तो तुम लोगों ने देखा होगा सनग्लासेस जो आते हैं, so sunglasses usually have two properties. They are first of all UV blocking, ultraviolet blocking, and they are also polarized. The glasses are polarized. The glasses are basically polarizers, in the sense that sunlight falling on the glasses is unpolarized, but what they let through is plain polarized light. The screens on your phones, जो ग्लास तुम्हारा फोन का स्क्रीन पे लगा होता है वो खुद भी पोलराइजर होता है, और उसमें से जो लाइट पीछे जो स्क्रीन से लाइट जनरेट होती है, जो उसके डिस्प्ले से लाइट जनरेट होती है, वो अनपोलराइज्ड होती है, और फिर वो उस स्क्रीन ग्लास स्क्रीन के थ्रू जब निकल के हमारी आंखों में जाती है तो वो पोलराइज हो गई होती है। सो देयर आर दीज डिवाइसेस, देयर आर दीज थिंग्स which are called polarizers, which have the property that they will take unpolarized light and convert it into polarized light. ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि उसका लॉजिक क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल
the device that converts unpolarized light to polarized light is called a polarizer. And this process is called polarization. So actually polarization word के दो मीनिंग है, कंफ्यूज मत होना. Polarization is both a noun and a verb, right? The process of converting unpolarized light to polarized light is called polarization, where the meaning is that you are doing something, you are polarizing the light, so it's called polarization. But polarization as a noun also describes the state of polarization of light, कि उसका polarization क्या है, is it plain polarized light, is it unpolarized light, what is the polarization of that light. So the word polarization describes both the state of the light and the process that makes unpolarized light into polarized light. ठीक है? By the way, एक पोलराइजेशन या पोलराइजेशन जो वर्ड है तुमने और कॉन्टेक्स्ट में देखा होगा जब तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ा होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पढ़ा होगा, और उसमें तुमने देखा होगा कि in the presence of an electrical field you can basically polarize those materials, you can create इवन केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में जो ऑप्टिकल रोटेशन करते हैं वो भी ऐसा ही है ना? वो तो यही चीज है बिल्कुल. हाँ सर ऐसा ही है. वो तो यही कॉन्सेप्ट है कि लाइट जो है पोलराइज, उसका एक पोलराइजेशन का प्लेन है, और जब वो सर्टेन मॉलिक्यूल्स के थ्रू पास होता है तो वो उसका प्लेन रोटेट हो जाता है पोलराइजेशन का. तो बाय यूजिंग अ पोलरीमीटर वी कैन काइंड ऑफ सी हाउ मच, एंड देन वी कैन मेजर द अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इन दैट, depending on how much the polarization plane has rotated. So that is the same thing as this. It is utilizing the same concept. It's a measurement technique based on the fact that light is a polarized wave. दूसरा जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो एक अलग यूजेज है इस वर्ड का, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो डाइपोल बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, एक रेगुलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो पोलराइज हो जाता है, तो उसको भी पोलराइजेशन कहते हैं, राइट? वो एक अलग यूजेज है. हालांकि दोनों का मीनिंग सिमिलर है इन स्पिरिट, बिकॉज पोल का मतलब होता है, जैसे पोल इज लाइक वन एंड, तो पोलराइजेशन मतलब उसके एंड्स बनाना. तो यहाँ पर भी एक सेंस में पोलराइजेशन यही है कि अनपोलराइज लाइट का कोई पर्टिकुलर एंड नहीं है, कोई पर्टिकुलर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कोई 1 2 ऐसा कुछ डुअलिटी नहीं है उसमें, जबकि पोलराइज लाइट में देयर इज अ यूनिक, राइट? सो जो उसका एसेंस है पोलराइजेशन वर्ड का वो तो सेम ही है इधर और उधर, लेकिन यहाँ पे अलग चीज है वो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अलग चीज है. और वो केमिस्ट्री में जो पोलराइजेशन है और वो जो ऑप्टिकल रोटेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं मॉलिक्यूल से, जो उनका, जिससे हम उनका लेफ्ट हैंडेडनेस और राइट हैंडेडनेस मेजर करते हैं, वो यही कॉन्सेप्ट है. वो लाइट के पोलराइजेशन के प्लेन को ही टर्न करता है मॉलिक्यूल, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल प्रेफरेंशियली by a certain amount, which is a property of that molecule. So that's another way of characterizing that molecule. तो it's called polarization. तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास जो है अनपोलराइज लाइट है, ये हमारा जनरल सिंबल है अनपोलराइज लाइट का, ठीक है? और ये अनपोलराइज लाइट को मैं भेजूंगा इनटू अ पोलराइजर. पोलराइजर का स्कीमेटिक डायग्राम ऐसे होता है, ठीक है? ये एक पोलराइजर है, पोलराइजर 1. प्लीज अंडरस्टैंड कि ये ड्राइंग जो है स्कीमेटिक है. पोलराइजर एक्चुअली कोई कार्डबोर्ड विद अ स्लिट नहीं होता है, ये बस तरीका है बनाने का. लाइट ईएम वेव है, और ईएम वेव्स जो है वो किसी स्लिट के थ्रू पास होके नहीं, ऐसा नहीं होता है कि वो, हम ये नहीं कर रहे हैं कि वो जाएगा इधर से तो जो, क्योंकि उसका ये वाला पार्ट जो है स्लिट के थ्रू निकल जाएगा तो वो उधर चला जाएगा और बाकी कट जाएंगे उससे, ऐसा नहीं है. लेकिन इसको ड्राइंग में ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है? तो इधर जो निकलेगा वो ऐसा निकलेगा. तो तुम्हारा पोलराइजर ने जो है अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज बना दिया, ठीक है? और फिर अगर एक और पोलराइजर लगा है इसके बाद एट एन एंगल फ्रॉम द वर्टिकल which is let's say theta,
ये तो वर्टिकली हो गया है। लेट मी से कि ये तुम्हारा अनपोलराइज लाइट था, उधर निकल के प्लेन पोलराइज हो गया। तो अब जब वो फाइनली इधर से निकलेगा तो वो ऐसा हो गया होगा, उसमें केवल ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बचा होगा ई फील्ड का, खुद थीटा पे। दिस इज योर सेकंड पोलराइजर। ठीक है, तो अज्यूमिंग कि इसका इंटेंसिटी जो है वो आई नॉट है, ठीक है, तो जो लाइट उधर निकलेगी उसका इंटेंसिटी जो है वो आई नॉट बाई 2 हो गया होगा। क्यों हो गया होगा ऐसा? वो इसलिए हो गया होगा क्योंकि एक तरीके से इसमें ये प्रॉपरली अनपोलराइज लाइट में वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वो है प्लेन्स ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, तो जब ये इधर से चला जाएगा तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम इसके जो सारे ई के कंपोनेंट्स हैं, ये सब इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड को वाई में, मतलब जो टेढ़े वाले हैं या तो वाई में है इलेक्ट्रिकल फील्ड या एक्स में है, लेकिन बाकी जो एक्स और वाई दोनों में है उसको एक्स और वाई में रिजॉल्व कर लिया है, तो सारा का सारा इलेक्ट्रिकल फील्ड या तो वाई में कर दिया है एक्स में कर दिया है। अगर ये परफेक्टली अनपोलराइज्ड है, यानी इसमें कोई भी प्रेफरेंशियल, देखो रियलिस्टिक लाइट तो परफेक्टली अनपोलराइज भी नहीं होगा, ये तो परफेक्टली अनपोलराइज्ड इन द सेंस कि इसमें सब तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। रियलिस्टिक लाइट जो है वो तो आर्बिट्ररली पोलराइज्ड होगा, मतलब कि लाइक इट कुड बी लाइक दिस एंड देन कुड बी लाइक दिस, कुछ भी आर्बिट्ररी हो सकता है, राइट? इट इज नॉट इवन नेसेसरी कि सारे प्लेन्स में ई का एम्पलीट्यूड भी सेम हो, like maybe some charge oscillates more widely than another charge, right? So realistic light will be completely chaotic, there is no order to this। ठीक है, ये मैंने बना दिया है यहाँ पे, बट ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। दिस इज परफेक्टली अनपोलराइज्ड, ये भी एक आइडियलाइजेशन ही है कि वो इतना अनपोलराइज्ड है कि बिल्कुल यूनिफॉर्मली अनपोलराइज्ड है। तो अगर वो यूनिफॉर्मली अनपोलराइज्ड है तो उसमें y और x में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कंपोनेंट्स का, तो देयरफॉर आधी इंटेंसिटी जो है उसकी y में, आधी इंटेंसिटी x में, तो x वाला इंटेंसिटी कट ऑफ हो गया। ये जो लाइन है इसकी, दिस इज कॉल्ड द पोलराइजर एक्सिस। एक्सिस के अलोंग वाला फील्ड बच जाएगा और एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला फील्ड कट जाएगा, तो इसका इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 हो गया। ठीक है, और फिर जो है, लेकिन ये ध्यान रखो कि एक तो अब जब तुम यहाँ पे कंपोनेंट लेने वाले हो तो एम्पलीट्यूड का कंपोनेंट लेने वाले हो, इंटेंसिटी तो स्केलर है, उसका कंपोनेंट तो लोगे नहीं, तो एम्पलीट्यूड का कंपोनेंट लोगे। तो एम्पलीट्यूड का जब कंपोनेंट लोगे तो एम्पलीट्यूड जो भी बचा, एम्पलीट्यूड कितना हो गया होगा? अगर इसका एम्पलीट्यूड ए नॉट था तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? A naught by 4. नहीं, A naught by root. a naught by root 2। You all understand why? Yes, sir. Because intensity is proportional to the square of the amplitude। So इसका एम्पलीट्यूड अगर a नॉट है या e नॉट है, a नॉट तो अब क्यों यूज करेंगे हम, लाइट है ये, इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड है, उसी का एम्पलीट्यूड है, तो अगर इसका एम्पलीट्यूड e नॉट है तो इसका एम्पलीट्यूड e नॉट बाय रूट 2 है, तो फिर एम्पलीट्यूड तो वेक्टर है, इलेक्ट्रिकल फील्ड तो वेक्टर है, उसका कंपोनेंट ले सकते हो, तो उसका जो कंपोनेंट ऐसे लोगे वो होगा e नॉट बाय रूट 2 cos थीटा, और वो चला जाएगा उधर और बाकी सब कट जाएगा, तो उधर जो चीज निकला अब उसका कितना एम्पलीट्यूड है, e नॉट बाय रूट 2 cos थीटा, तो देयरफॉर उसका इंटेंसिटी कितना होगा, e नॉट स्क्वायर बाय 2 cos स्क्वायर थीटा। लेकिन e नॉट स्क्वायर बाय 2 जो बेसिकली i नॉट बाय 2 के ही प्रोपोर्शनल है, तो इधर जो इंटेंसिटी आएगी वो हो जाएगी i नॉट बाय 2 cos स्क्वायर थीटा। तुम लोग समझ गए? Yes, sir. राइट। दिस इज कॉल्ड मैलिस लॉ। बेसिकली अगर तुम सिंपली एक लाइट के लिए देखो कि वो जो है परफेक्टली ये है अनपोलराइज्ड है और उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, या रादर सॉरी,
अगर एक प्लेन पोलराइज लाइट है और वो जा रहा है और फिर आगे उसको एक पोलराइजर मिलेगा जिसकी एक्सिस उस लाइट के प्लेन ऑफ पोलराइजेशन से थीटा पे टिल्टेड है, तो जो उधर लाइट निकलेगा उसकी इंटेंसिटी और ओरिजिनल इंटेंसिटी को रिलेट करता है ये लोग, कि अगर ये आई नॉट है तो ये आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा है। दिस इज कॉल्ड मैलिस लॉ। ये तुम्हें याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सब लोग समझ गए? यहाँ तो मैंने पहले एक अनपोलराइज लाइट लिया, उसका इंटेंसिटी आई नॉट था, तो इसलिए पहले उसको जब पोलराइज किया तो वो आई नॉट बाई 2 का बन गया। कॉस स्क्वायर थीटा इसलिए टर्म आया क्योंकि पहले मेरे को एम्पलीट्यूड बनाना होगा ना इसका। एम्पलीट्यूड का मैं कंपोनेंट ले सकता हूँ, इंटेंसिटी तो स्केलर है, तो एम्पलीट्यूड का कंपोनेंट लूंगा तो एम्पलीट्यूड कॉस थीटा हो जाएगा। फिर वापस इंटेंसिटी बनाने के लिए फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एम्पलीट्यूड का भी स्क्वायर होगा, कॉस का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बराबर। एम्पलीट्यूड्स के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो लिख लो यहाँ पर। इसका एम्पलीट्यूड जो है मान लो ई नॉट है, तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो ई नॉट बाई रूट 2 है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का ही कंपोनेंट तुमने लिया होगा ना, इस एम्पलीट्यूड का कंपोनेंट लिया होगा, तो वो हो गया होगा ई नॉट बाई रूट 2 कॉस थीटा, और फिर स्क्वायर कर दिया होगा तो इंटेंसिटी बन गया होगा, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा आता है। और मैलिस लॉ बस इतना सा है कि अगर एक प्लेन पोलराइज लाइट है आई नॉट इंटेंसिटी का और वो एक पोलराइजर में से गया जो उससे टिल्टेड है एट एन एंगल थीटा, तो जो उधर लाइट निकलेगा उसका इंटेंसिटी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होगा। मतलब इसमें जो मैलिस लॉ है वो इतना ही है। तो आई नॉट बाई 2 से स्टार्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पहले वाले को मैंने आई नॉट लिया हुआ है, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम में तुम्हें यही आई नॉट दे देंगे इसी को, तो ये फिर जो है आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होगा, ये आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अगर ये आई नॉट है। अगर ये आई नॉट है तो फिर ये आई नॉट बाई 2 हो जाएगा। तुम लोग समझ गए पूरा चीज? Yes, sir. ऑलराइट, इसका कॉन्सिक्वेंस ये है, लुक एट इट दिस वे, कि अगर मेरे पास एक पोलराइजर है, अगर मेरे पास अनपोलराइज लाइट आ रही है और फिर एक पोलराइजर है और फिर दूसरा पोलराइजर उससे थीटा एंगल पे लगा हुआ है, तो फाइनली जो मेरी आंखों में लाइट जाएगी, मान लो मैं इधर से देखने वाला हूँ, उसकी इंटेंसिटी ये होगी। मान लो ये सेकंड पोलराइजर फर्स्ट पोलराइजर से 90 डिग्री पर है, इसकी पोलराइजर एक्सिस जो है वो 90 डिग्री फ्रॉम दिस है, तो यहाँ कितना लाइट रिसीव होगा? नन, जीरो हो जाएगा कॉस, तो एकदम अंधेरा हो जाएगा। तो अगर तुम दो पोलराइजर्स को म्यूचुअली, उनके एक्सिस को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हो, मान लो पोलराइजर पेपर तुम खरीद सकते हो, वैसे अमेजोन पे मिलता है, इट्स लाइक प्लास्टिक शीट, थिन प्लास्टिक शीट ऑफ स्लाइटली ब्लैक कलर, जैसे एक्सरे का फिल्म होता है ना वैसा दिखता है। पोलराइजिंग के छोटे छोटे स्क्वायर्स आते हैं, पोलराइजर स्क्वायर्स। तो अगर तुम एक पोलराइजर स्क्वायर ले लो और यहाँ जो ये लिखा हुआ है इस पे रख दो, तो काफी डल हो जाएगा ये, क्योंकि ऑब्वियसली पहले इंटेंसिटी को कट कर दिया है, मतलब मैं उसके थ्रू देख रहा हूँ, तो ये जो लाइट आ रही है, क्योंकि नेचुरल लाइट है, बाहर से सनलाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है और ऐसे ऐसे आ रही है, तो जो मेरी तरफ आ रही है वो ऐसे भी पोलराइज्ड है, ऐसे भी पोलराइज्ड है, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इसको। तो मैं जब इसे पोलराइजर रख दूंगा जिसकी एक्सिस ऐसे है, तो केवल ऐसी वाली फील्ड बचेगी, बाकी सब कट हो जाएगा, तो पहले ही डिम हो जाएगा वो। अब अगर मैं इसके ऊपर एक और शीट ऑफ पोलराइजर ऐसे रख दूं जिसकी एक्सिस जो है इसके साथ ऐसे है, तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको ऐसे ऐसे टर्न करूंगा तो आई विल स्टार्ट टू बी एबल टू सी, ये जो लिखा हुआ है नीचे का, ये थोड़ा थोड़ा विजिबल होने लगेगा जैसे जैसे टर्न होगा, और ऐसे होके टर्न हो जाएगा तो काफी विजिबल हो जाएगा। ऑफ कोर्स इतना विजिबल नहीं होगा, लेकिन अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो एकदम जीरो हो जाएगा। ठीक है। and also if I take a polarizer and I put it like this and I take another polarizer and I put it like that, जीरो हो गया। लेकिन अगर मान लो मैंने इन दोनों पोलराइजर के बीच में एक और पोलराइजर घुसा दिया जो किसी एंगल पर है, जो उससे भी किसी एंगल पर है और इस वाले से भी, ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, लेकिन बीच में एक पोलराइजर और डाल दी जो इन दोनों से किसी एंगल पर है, तो फिर मेरे को दिखने लगेगा थोड़ा सा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाई? Yes, sir. Right? Yes. So that's a strange phenomenon that if you have two mutually perpendicular polarizers, then it becomes completely opaque and you can't see what is piche.
मतलब one way to see it is to turn these two relative to each other, but if you don't turn them but put another polarizer in between which is at an angle from both of them, then you can again start to see something, right? And you can see why that would happen. तुम चाहो तो ये एक्सपेरिमेंट अब पोलराइजर खरीदे बिना भी कर सकते हो. All you need is first of all your smartphone and sunglasses which are polarized. तो देख लेना अगर उस पर लिखा होगा पोलराइज, ये केवल यूवी वाले से नहीं होगा, पोलराइज्ड होना चाहिए वो सनग्लासेस. तो अगर तुम्हारे पास वैसे सनग्लासेस है तो तुम करके देख सकते हो. तुम अपना फोन का स्क्रीन ऑन करो, चश्मा लगाओ और देखो उसको, तो डार्क सा दिखेगा थोड़ा ऑब्वियसली, विच इज अ कॉमन एक्सपीरियंस. सनग्लासेस में देख रहे हो तो थोड़ा डार्क दिखेगा, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो पोलराइजर है, तो कुछ पोलराइजेशन को कट कर देगा. अब वाइल कीपिंग इट ऑन ट्राई टू रोटेट द स्क्रीन, मतलब स्क्रीन का वो ऑन कर लेना कि ऑफ नहीं हो जाए बीच में. तो स्क्रीन को टर्न करोगे ना तो तुम देखोगे कि डिमर 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 होता जाएगा और एक सर्टेन एंगल पर एकदम ब्लैक हो जाएगा. मैं एक्चुअली खुद ही ये डिस्कवर किया था. एक दिन मैं जा रहा था कहीं पर बैठ के ऑटो में, और फिर मैं सनग्लासेस लगा के फोन पे कुछ कर रहा था, and then for whatever reason I wanted to turn the screen to landscape to see कि कुछ video या whatever. As I was turning the screen, it became darker and darker, and at some point it became completely dark. And I thought the phone had switched off. I mean, I thought the screen had switched off. So I took off the sunglasses and it was completely bright. So then I found कि the screen also has polarization. I mean, the screen, the glass also is a polarized glass. क्योंकि उसमें वही हो रहा है, यही चीज हो रही है, मैलिस लॉ हो रहा है. और एट तो स्क्रीन का भी अपना किसी एक्सेस ऑफ पोलराइजेशन है, तुम्हारे सनग्लासेस का भी कोई एक्सेस ऑफ पोलराइजेशन, जब वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं जिस भी कॉन्फ़िगरेशन में होगा. जरूरी नहीं है कि वो फोन के किसी पर्टिकुलर अच्छे कॉन्फ़िगरेशन में हो. इट्स नॉट नेसेसरी दैट द स्क्रीन ग्लास पोलराइजेशन इज aligned with the phone shape. Probably not, I don't know, maybe it's at an angle. But once you find that axis of polarization and it becomes perpendicular to your sunglasses axis, the screen will go completely dark. And if you remove your sunglasses, it will be completely bright. तो वही इफेक्ट है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर पोलराइजर से पूरा इंटेंसिटी कट आउट हो जाता है. ठीक है. तो वन वे टू polarize light is to use a polarizer. Another way light can get polarized naturally, जैसे वो हो जाता है, is in the process of reflection. ठीक है, तो ये भी एक चीज हमको पता होना चाहिए. This is called Brewster's angle. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर मान लो एक इंटरफेस है, ठीक है, ये μ1 है इधर, ये μ2 है, could be air, water और whatever. राइट. अब मान लो कि ये नॉर्मल तुमने बनाया और एक लाइट रे लाया. तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और बाकी ट्रांसमिट हो जाएगी. अगर तुमने इस तरीके से एंगल ऑफ, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दिस, इज इट पॉसिबल टू फाइंड एन एंगल ऑफ इंसिडेंस on any interface? Is it possible to find such an angle of incidence for which the reflected and the refracted light are mutually perpendicular? Question समझना तुम लोगों को? Is it possible to find, is there an angle of incidence for some interface, let's say air water interface or water air glass interface? Is there such an angle? Is there an angle of incidence? Whether you can vary this angle of incidence to find an angle of incidence at which you find that the reflected and the refracted light are mutually perpendicular. Is it possible? Are you guys answering? Is anybody saying anything? I can't hear.
It is of course possible, right? It should be, क्योंकि तुम ये एंगल अपनी तरफ से कंट्रोल कर रहे हो. रिफ्लेक्टेड लाइट नेचुरली ऐसे जा रही है सेम एंगल, और रिफ्रैक्टेड लाइट जा रही है फॉलोइंग स्नेल्स लॉ, whatever is the mu and mu2 will decide. So if you increase the angle of incidence, you cause this to go like this and you cause this to go like that. So by increasing the angle of incidence, you decrease the angle between the reflected and refracted light. And by decreasing the angle of incidence, when you go like this, you cause this to also come like this and you cause this to go like that. So you increase this angle. So it must be possible that at some intermediate place, they are mutually perpendicular. I mean, by hit and trial, you can find that angle of incidence for which the reflected and the transmitted light are mutually perpendicular. And it should be possible to find such an angle of incidence for any pair of media. Correct? Agreed? So if, and this is called the Brewster angle for that interface. Brewster angle is that angle which will create an angle of 90 is the angle of incidence at which the reflected and the refracted rays are mutually perpendicular. इसको फाइंड करना तो ट्रिवियल है. ये थीटा भी है, ये भी थीटा भी है, तो ये 90 माइनस थीटा भी होगा. और क्योंकि ये और ये 90 है, तो ये भी थीटा भी होगा फिर. तो ये एंगल 90 माइनस थीटा भी होगा. अब स्नेल्स लॉ लगा दो. mu1 sin theta b equals to mu2 sin 90 minus theta b. therefore theta b जो है वो हो गया tan inverse of mu2 by mu1. So basically every interface has what is called the Brewster's angle for that interface, and the Brewster's angle is that angle of incidence at which the reflected and the refracted rays are mutually perpendicular, and the value of the Brewster's angle is found by this. What is the significance of the Brewster's angle? भाई क्यों हम इस एंगल पे लाइट डालें, क्या फायदा है? सिग्निफिकेंस इसका ये है क्योंकि हम पोलराइजेशन पढ़ रहे हैं. सिग्निफिकेंस इसका ये है कि if unpolarized light is incident at an interface at its Brewster's angle, हर interface का एक Brewster angle होता है given by this. So if unpolarized light is incident at an interface at its theta b, the reflected light is perfectly plane polarized. तो मतलब तुम्हारा अनपोलराइज लाइट गिरेगा इस पे, यानी कि ऐसा लाइट गिरेगा इस पे और ऐसा लाइट चला जाएगा अगर थीटा बी पे गिरा तो. So one way of polarizing light without the use of an artificial polarizer is to make light strike an interface at the Brewster angle for that interface. Then the light that reflects will be plane polarized. ठीक है. और मैं कह रहा हूँ कि you can make it fall at this angle. It's not a way that in which we polarize it.
because it's not very practical. But since in nature light is always falling on some or the other interface, then the reflected light is eventually polarized as a result. ठीक है? तो for example हो सकता है तुमने देखा हो, I'm not sure, this is a very obscure kind of a thing, and I don't know how observational you are in life, but sometimes if you look at a building, जैसे कोई स्कूल या कोई हॉस्पिटल या कुछ है जिसमें कई सारे ग्लास विंडोज हैं, राइट, लाइन से, and of course there is the sun here and you are standing here, so you are looking, so light from the sun is reflecting from all the windows and going into your eyes. So mostly क्या होता है कि तुम जो है विंडो में सन देख रहे होते हो, मतलब बहुत ग्लेयर आ रहा होता है, सनलाइट ही आ रही होती है, तो तुम विंडो से अंदर नहीं देख पा रहे होते हो क्योंकि वो बहुत ब्राइट सा दिख रहा होता है. लेकिन कोई एक विंडो होगा जो तुम्हारे रिलेटिव, क्योंकि given that you and the sun are at a relative position, there must be some window or some surface which is correctly at the Brewster angle. किया उधर से आता हुआ लाइट जो सन से आता होगा और जो तुम्हारी आंख तक जाता होगा वो ब्रूस्टर एंगल होगा. वो विंडो जो है ऐसा दिखेगा जैसे विंडो ही नहीं है, ग्लास ही नहीं लगा है उधर, उधर से एकदम अंदर तक दिखेगा बिल्डिंग के. Have any of you ever noticed something like this? There will be glare all over the windows, most windows, but there will be some window at some angle through which you are able to see into the building. Like dark सा होगा वो, उसमें से उतना glare नहीं आ रहा होगा और अंदर का दिख रहा होगा. Mostly तो डे टाइम में विंडो के थ्रू बाहर अंदर का दिखता नहीं है क्योंकि बाहर इतना लाइट होता है कि वो सब रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जा रहा होता है. तो अंदर से जो लाइट आ रही होती है वो उसके सामने डिम पड़ जाती है. अंदर से भी लाइट आ रही है बाहर, अंदर जो बिल्डिंग के अंदर, अनलेस अंदर लाइट ऑन हो, स्विच ऑन हो आर्टिफिशियली. बट डे टाइम में अगर अंदर लाइटिंग नहीं किया हुआ है तो अंदर से जो लाइट आ रही है वो काफी कम है क्योंकि वो तो बाहर की लाइट है जो अंदर को वॉश करके बाहर निकल रही है. इट्स सनलाइट दैट हैज मेड इट थ्रू द विंडो एंड देन सॉर्ट ऑफ बाउंस्ड ऑफ द वॉल्स एंड एवरीथिंग एंड कम बैक. So it's very dim light, and the sunlight that is reflected from the outside of the window is very bright, so the light from the inside gets lost. And so mostly in the daytime you can't see through a window into the building because of the glare. But कभी किसी certain angle पर अचानक से arbitrarily एक window ऐसा दिखेगा कि कोई glare नहीं होगा उसमें, उसके थ्रू तुम अंदर देख पा रहे होगे. उधर यही हो गया है कि सन और तुम्हारे रिलेटिव वो विंडो ऐसा या वो सरफेस ऐसा पड़ रहा है कि वो ब्रूस्टर एंगल है उस इंटरफेस का, whatever that interface is, air and glass or whatever. And so what you're receiving is plain polarized light. It's as if you're looking through sunglasses. तो ग्लेयर कट गया और तुम अंदर देख पा रहे हो. तो ये होता है, ये चीज एक इफेक्ट है ब्रूस्टर एंगल जो है. बट द पॉइंट इज दिस इज हाउ यू फाइंड इट. ठीक है. अब ये हमारा हो गया ईएम वेव का टॉपिक खत्म. ऑलराइट, नेक्स्ट जो है हम कर लेते हैं, और हमारे क्या मेन टॉपिक्स बचे हैं. तुम लोगों का वो नहीं हुआ है ना, डैम्प ड्रिवन ऑसिलेटर नहीं हुआ है, वो मैं बता देता हूँ क्विकली, छोटा सा टॉपिक है. आई थिंक तुम लोगों ने डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ लिया था, है ना? यस सर. तुम लोगों ने वो पढ़ लिया होगा कि भाई अगर डैम्पिंग लाइट है, डैम्पिंग हैवी है, तो 3 केसेस बनते हैं, ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड, राइट? ठीक है. नहीं सर, ये नहीं पढ़ा. नहीं, वो भी नहीं पढ़ा है. तो फिर तुम लोगों ने डैम्प्ड ऑसिलेशन पूरा ही नहीं पढ़ा है मतलब. ओके. एसएचएम के बाद में तुम लोगों ने नहीं पढ़ा था ये चीज कि अगर एक डैम्पिंग फोर्स भी प्रेजेंट है तो क्या होगा? 3 केसेस होंगे, ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड. सर बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था लेकिन ये 3 टाइप्स नहीं पढ़ा था. अच्छा, तो फिर ठीक है, पूरा ही कर देते हैं. तो पहले जो है डैम्प्ड ऑसिलेटर हम पढ़ेंगे. डैम्प्ड ऑसिलेटर जो है, जब हम एसएचएम पढ़ते हैं, ठीक है, तो एसएचएम के टाइम पे हम लोग पढ़ते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेटर. अनडैम्प्ड ऑसिलेटर का मतलब होता है अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर.
जो अनडैम्प्ड ऑसिलेटर होता है उसका स्टोरी ये होता है कि भाई एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इसका मास है, इसका स्टिफनेस है, लेकिन बाकी ये सरफेस भी स्मूथ है और आसपास कोई एयर भी नहीं है। तो आइडियलाइज तुम कर रहे होते हो। तो इसमें क्या होता है कि एक बार ये चालू कर दिया जाता है तो फिर ये कभी नहीं रुकता है, क्योंकि ऑब्वियसली इस पे कोई रिटार्डिंग फोर्स ही नहीं है और कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, तो इसका एनर्जी खत्म नहीं हो सकता है, लॉस नहीं हो सकता है इसको एनर्जी का। स्प्रिंग भी आइडियल है, स्प्रिंग गर्म नहीं हो रहा है बार बार चलने से, रियलिस्टिक स्प्रिंग बार बार चलने से गर्म हो जाएगा। इवन वैक्यूम में भी अगर चलाओगे और स्मूथेस्ट पॉसिबल सरफेस पे भी चलाओगे तो स्प्रिंग इज आल्सो अ सोर्स ऑफ लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, because after many oscillations the spring will have become significantly warmer, and that's the energy that has come from the motion, so the motion would have reduced over a period of time. But if you idealize everything, if you said there is no air, air नहीं है तो ये डब्बे को ठोक ठोक के नहीं जाना पड़ रहा है चीजों को टू मेक वे फॉर इटसेल्फ, क्योंकि एयर के थ्रू ये जाएगा तो उसको एनर्जाइज कर देगा, उसको ठोक ठोक के वो फास्ट हो जाएगी तो ये स्लो हो जाएगा। एयर नहीं है, नीचे भी कोई कोई कहीं फंस नहीं रहा है ये, क्योंकि जब उस पे चलता है ये तो उनको ठोकता हुआ जाता है तो फिर वो लोग वाइब्रेट कर रहे होते हैं, दैट्स आल्सो हीट, सो देन इट लूजेस मोशन। और स्प्रिंग में भी कोई लॉस नहीं है स्प्रिंग में। तो आइडियलाइज्ड जो ऑसिलेशन होती है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन वो हम पढ़ते हैं, वो हम एसएचएम की तरह, एसएचएम जो चैप्टर है दैट इज आइडियलाइज्ड ऑसिलेशन, राइट। देयर इज नो डैम्पिंग, नो रिटार्डेशन, एनर्जी इज नेवर लॉस्ट, वंस यू स्टार्ट इट गोज ऑन फॉरएवर। लेकिन ऑब्वियसली कोई भी रियलिस्टिक ऑसिलेटर जो इन लाइफ होता है वो अनडैम्प्ड नहीं होता है, राइट। देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ डैम्पिंग, प्राइमरीली एयर ड्रैग। अब ये तो अलग बात है कि डब्बा जो है फ्लोर पे रख के चल रहा है, बट जो सबसे कॉमन सॉर्ट ऑफ सिनेरियो होता है जिसमें ऑसिलेशन को डिस्कस करना होता है, उधर में कोई डब्बा किसी सरफेस पे नहीं चल रहा होता है। इट्स मोर लाइक कोई स्प्रिंग पे कोई ब्लॉक होती है जो फ्री होती है, मतलब देयर इज नो सरफेस अगेंस्ट विच। सो फॉर एग्जांपल बाइक का जो सस्पेंशन है, तो तुम बाइक चला रहे हो तो जब ब्रेक मारोगे तो द फ्रंट अपर पार्ट ऑफ द बाइक विल गो इन एंड देन कम बैक आउट, राइट। सो अंदर उसमें वो ट्यूब होता है जिसके अंदर बाइक का फोर्क ऐसे ऐसे करके दो तरफ ट्यूब होता है और उसके अंदर वो सस्पेंशन ऐसे ऐसे जाती है, राइट। सो दैट्स लाइक यू कुड से इट्स अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देयर, ठीक है। गाड़ी का सस्पेंशन जो है, कार का, बस का, ट्रक का, सो देयर इज लाइक द होल body of the thing and then there is the wheel, and roughly speaking there is a spring between the two, and so as the thing goes over, the idea is that the body will continue moving in a more or less straight line and the wheel and the spring will adjust to the shape of the road नीचे से, right. So as the body will sort of stay in more or less the same position and the wheel will adjust to the contours of the road. So over there also there is some kind of a mass and there is a spring kind of a structure, right. तो उन सारे केसेस में सबसे कॉमन जो कॉज ऑफ डैम्पिंग होता है, डैम्पिंग का मतलब मोशन को डैम्प मतलब खत्म कर देना ओवर पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स द मीनिंग ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो जो सबसे कॉमन कॉज होता है वो एयर ड्रैग होता है, एयर ड्रैग या फ्लूइड ड्रैग। Sometimes it's air, mostly it's air because air is all around, so anything moving in real life is moving through air, or otherwise it's moving through some fluid, like the bike का जो सस्पेंशन है वो उसके शॉकर फ्लूइड होता है उधर, उसके थ्रू वो जो हम विस्कोसिटी में पढ़ते थे वो प्रॉब्लम ऑफ सिलेंडर स्लाइडिंग इनसाइड अनदर सिलेंडर। अब वहां पे हमने उसको सिंपल ट्रांसलेशन की तरह पढ़ा था कि बस वो सिलेंडर के अंदर जा ही रहा है, इनफाइनाइटली लंबा सिलेंडर है, बट रियलिस्टिक केस में उसको वापस भी आना पड़ेगा तो वो एक ऑसिलेशन हो जाएगा उधर। तो देयर इज सम फ्लूइड, मोस्ट कॉमनली देयर इज एयर अराउंड द मूविंग ऑब्जेक्ट, or if not air then there is either grease or whatever, some kind of a fluid, and when it moves through a fluid there is a retarding force on it. There is the accelerating force which is the spring, there is also the retarding force which is the viscous drag, and that viscous drag in addition to the spring force. और viscous drag, if you remember Stokes law हमने पढ़ा था, for a sphere
6 pi eta r v proportional to the speed, right? तो viscous drag जो है for low speeds is proportional to the speed. अब sphere के लिए वो 6 pi eta, कोई और शेप के लिए कुछ और नंबर होगा सामने, लेकिन ये फैक्ट फिर भी ट्रू रहेगा कि proportional to speed तो रहेगा ही. The faster the thing goes, the more drag it experiences. Once it goes even faster, the relationship also changes. Instead of being proportional to v, the drag becomes proportional to v square. So the actual relationship is quite complicated. It's an empirical sort of a series where there is a v term and a v square term and a v cube term and so on and so forth. But at low speeds, which are common everyday occurrences, by high speeds I mean to say like supersonic speeds. जब जो supersonic aircraft होते हैं, उन लोगों को जो ड्रैग एक्सपीरियंस करना होता है, उन लोगों के कैलकुलेशन में v स्क्वायर का टर्म रेलिवेंट हो जाता है. तो अदरवाइज बाकी सबके लिए जो है v का टर्म रेलिवेंट होता है, स्लो स्पीड पे v ही होता है. तो राइट, तो इसको हम लिख सकते हैं where b we will call the drag coefficient. ठीक है, ऑलराइट. तो अब अगर मैं इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूं, क्या क्या फोर्स लग रहा होगा उस पर? माइनस के एक्स तो लग ही रहा होगा, वो तो पहले भी लग रहा था. लेकिन पहले जो इक्वेशन थी एसएचएम के टाइम पे वो सिंपली थी माइनस के एक्स इक्वल्स टू एम ए. अब उसमें एडिशनली माइनस बीवी भी है इक्वल्स टू एम ए. दिस इज द न्यू टर्म एंड आई होप तुम लोग समझ रहे हो, दोनों पे माइनस माइनस के लगा. मतलब अगर x इक्वल टू 0 उसका मीन पोजीशन है, तो जब वो पॉजिटिव x पे होगा तो के एक्स फोर्स नेगेटिव तरफ लगना चाहिए, स्प्रिंग वापस खींच रहा होगा, तो करेक्ट है. और जब वो नेगेटिव x पे होगा तो स्प्रिंग उधर खींचना चाहिए, तो पॉजिटिव हो जाना चाहिए नेगेटिव x पे, तो करेक्ट है. ये अलग चीज से कंट्रोल होता है, ये स्पीड या डायरेक्शन ऑफ मोशन से कंट्रोल होता है. चाहे वो इधर हो वो रेलिवेंट नहीं है, ये किस तरफ जा रहा है उस पर डिपेंड करता है. अगर ये राइट की तरफ जा रहा है तो v पॉजिटिव है, तो माइनस बी वी नेगेटिव फोर्स हो जाएगा, यानी पीछे लगता होगा, करेक्ट है. और अगर ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो v नेगेटिव है, तो माइनस बी भी पॉजिटिव हो जाएगा और उधर लगेगा तो भी ऑपोजिट द मोशन लगेगा. सो द स्प्रिंग फोर्स इज ऑपोजिट द डिस्प्लेसमेंट. If you displace to the right, the spring pulls you to the left. If you displace to the left, the spring pulls you to the right. Drag is opposite the direction of motion or velocity. If you are going to the right, the drag is to the left. If you're going to the left, the drag is to the right. ठीक है, फाइन. तो ये तुम्हारा F equals to ma हो गया for the damped oscillator. The new term is the minus BB term. The bigger the value of B, the more viscous, the thicker the material. अब B अगर छोटा वैल्यू है तो मान लो ये वैक्यूम में चल रहा है, हवा में चल रहा है. अगर ये ग्रीज में चल रहा है तो b का वैल्यू बड़ा होगा. सो दिस कांस्टेंट b कंट्रोल्स द सॉर्ट ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम थ्रू व्हिच इट इज मूविंग, हाउ मच ऑफ अ ड्रैग इट एक्सपीरियंस. अब इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, d2x by dt स्क्वायर प्लस b by m dx by dt प्लस k by m x इक्वल्स टू 0. समझ गए कैसे? पहले मैंने m से डिवाइड कर दिया पूरा इक्वेशन, a को लिख दिया d2x by dt स्क्वायर, v को लिख दिया dx by dt और सब एक तरफ कर दिया. तो अभी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है जिसमें सेकंड डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है x है. यहाँ तक क्लियर है सबको? अब इसको सॉल्व करना है. अब हम इसको सॉल्व करने का तरीका नहीं सीखेंगे क्योंकि वो डिफरेंशियल इक्वेशंस का थ्योरी है.
मैं तुम लोगों को डायरेक्टली इसका सोल्यूशन बता दूंगा। हमारे लिए रेलिवेंट है कि सोल्यूशन क्या है, केसेस क्या क्या बन सकते हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल let me just tell you one thing is that we will first write it in a way which is more convenient. So what we will do is, let us call B by M as 2 gamma omega naught and K by M as omega naught square. देखो ये जो लिखा हुआ है नीचे, ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, अंडर रूट के बाय एम is the natural frequency of this oscillator. You remember this term? मतलब अगर ये डैम्प नहीं होता तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती, यानी जो हम एसएचएम में पढ़ते थे, जो फ्रीक्वेंसी होता था एंगुलर फ्रीक्वेंसी अंडर रूट के बाय एम, उसको बोलते हैं एक्चुअली उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब उधर उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं बोलते थे क्योंकि उधर वही एक चीज था पढ़ने के लिए, तो देयर वाज नो रीजन टू डिस्टिंग्विश इट विद सम अदर फ्रीक्वेंसी, सो वी सिंपली यूज्ड टू कॉल इट फ्रीक्वेंसी अंडर रूट के बाय एम। एंड यू नो व्हाट इट कैरेक्टराइजेस, k is the stiffness of the spring, m is the heaviness of the mass. So the stiffer the spring, the lighter the mass, the more rapidly the system moves, and the loose the spring and the heavier the mass, the slower the oscillation, right? So that is what this characterizes, and this is called the natural frequency of this oscillator. तो वो टर्म यहाँ पर है तो वो उसका स्क्वायर लिखा है, तो मैंने उसको ओमेगा नॉट स्क्वायर बोल दिया। और नया कांस्टेंट मैंने इंट्रोड्यूस किया है गामा। दिस गामा इज कॉल्ड द डैम्पिंग रेशियो। ठीक है, अगर तुम चाहो तो तुम देख सकते हो गामा की वैल्यू क्या है। ये देखो कोई ऐसी चीज नहीं है जो जरूरी है करना, दिस इज ऑल अ मैटर ऑफ मैथमेटिकल कन्वीनियंस। ये 2 भी इसमें लिखने का रीजन यही है कि जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन है उसमें नीचे डिवाइड बाय 4 होता है, तो हम उसको कैंसिल आउट कराने के लिए सिंपली अ सब्स्टिट्यूशन। गामा जो है उसकी वैल्यू तुम देख सकते हो b बाय 2 रूट m के आएगी। तो ये इन्हीं से रिलेटेड है, बेसिकली 3 ही प्रॉपर्टीज है हमारे सिस्टम में, m, b और k, और कुछ नहीं है। b जो है कितना डिफिकल्ट है मूव करना, k कितना स्टिफ है स्प्रिंग, और m कितना हैवी है मास। ये 3 प्रॉपर्टीज हैं इस सिस्टम की। b कितना विस्कस है, मीडियम, राइट। तो गामा उन्हीं चीजों से बना हुआ है, बट इट्स जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग इट। यू कैन चेक कि अगर मैं 2 गामा ओमेगा नॉट लिखता हूँ तो वो क्या बनता है, देख लो। यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 गामा ओमेगा नॉट इज 2 गामा है b बाय 2 रूट m के, और ओमेगा नॉट है k बाय m का रूट। तो यू कैन सी दैट दिस 2 विल कैंसिल आउट एंड mm हो जाएगा और k कट जाएगा, तो ये b बाय m बन जाएगा, वही चीज है वो। ठीक है, ऑलराइट। ऐसा लिखने से जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है अब वो हो गया d2x by dt स्क्वायर प्लस 2 गामा ओमेगा नॉट dx by dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। ये है तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेटर। अब इसको सॉल्व करना है। बेसिकली सॉल्व करने का मतलब है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए मेरे को, राइट। जब ये टर्म नहीं होता था, मतलब जब डैम्पिंग नहीं थी, यानी b 0 था तो गामा भी 0 था, तो ये कहानी था ही नहीं, उधर में पूरा खत्म हो गया था। तो वो तुम्हारा स्टैंडर्ड एसएचएम था जिसका सोल्यूशन था a sin ओमेगा t प्लस 5, राइट। ये सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इफ यू रिमेंबर यू वुड हैव सॉल्व्ड इट इन एसएचएम। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एडिशनल टर्म है बीच में, सो इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड टू फाइंड अ सोल्यूशन, बट अल्टीमेटली सोल्यूशन फाइंड करना ही है। पॉइंट ये है कि x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, मोशन इसका डिस्क्राइब करना है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है केसेस बनते हैं 3। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट और इंस्टेड ऑफ लर्निंग हाउ टू सॉल्व इट राइट नाउ, आई विल जस्ट सिंपली टेल यू व्हाट आर द केसेस। तो पहला जो केस बनता है, और वो केसेस अल्टीमेटली गामा की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। 3 different types of motion can occur
depending on the value of gamma. पहला जो केस है उसे बोलते हैं ओवरडैम्प्ड। ठीक है, ओवरडैम्प्ड केस जो होता है उसकी कंडीशन ये होती है कि जो हमारा गामा है वो ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो अगर तुम गामा ग्रेटर देन 1 कर रहे हो तो तुम बेसिकली क्या कह रहे होते हो कि जो तुम्हारा बी स्क्वायर है वो 4mk से बड़ा है। If gamma is greater than 1, if this is greater than 1, then b square is greater than 4mk. मतलब the damping is very strong compared to the mass and inertia. It's a very thick thing through which it is trying to move. It's finding it very hard to move through it. तो उस केस में क्या होता है, आउटकम ये होता है कि no oscillation occurs. Oscillation मतलब overshoot नहीं करता है, and there is a return to mean position. कहने का मतलब ये, मैं प्लॉट बनाता हूँ इसका, कि अगर तुम उसको खींच के छोड़ते हो, ये टाइम है और ये पोजीशन है, तो अगर तुम उसको x से खींच के छोड़ देते हो, a से खींच के छोड़ते हो, तो देयर इज अ स्लो रिटर्न, एक्सपोनेंशियल रिटर्न टू मीन पोजीशन। ठीक है, इट्स लाइक वन ऑफ दोज डोर्स, राइट, वो जो सेल्फ क्लोजिंग डोर होते हैं, जो जैसे जहाँ पे हाई थरोफेयर होता है हॉस्पिटल टाइप में या कहीं पर, तो उसमें वो जब खोलते हैं फिर बंदा चला जाता है उधर से, तो डोर जो है ऐसे करके फिर धीरे धीरे बंद हो जाती है। तो उस टाइप की डोर को तुम डैम्प करना चाहते हो, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल उस टाइप की डोर को तुम क्लोज करना चाहते हो, सो इट हैज टू बी एन ऑसिलेटरी सिस्टम। इट शुड नॉट बी अ डोर दैट वंस ओपन रिमेन्स ओपन, बिकॉज देयर इज व्हाटएवर प्राइवेसी इश्यूज, और so you want the door that will close automatically. But now there is an issue of how much you should damp it. If you damp it too little, then it will continue swinging too much and it might hit the person in the face following the, right, वो गया। और वो अगर तुम ओवर डैम्प कर देते हो तो फिर वो खोल के उसको जाएगा और फिर ऐसे ऐसे करके वो बंद होता रहेगा, राइट। तो एसेंशियली डैम्पिंग कंट्रोल करनी है उसमें कि वो करेक्ट रेट पे बंद होता हो और ओवरशूट नहीं करता हो। ओवरशूट करेगा तो ऑसिलेशन हो जाएगी। इफ दिस ग्राफ गोज बिलो दिस लाइन देन दैट्स एन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन होता है तो मीन पोजीशन क्रॉस कर चुके हो और फिर वापस आ रहे हो। तो ओवर डैम्प इतनी डैम्पिंग होती है जिसमें कि वो ऑसिलेट नहीं कर पाता है, बस वो रिटर्न टू मीन पोजीशन करता है। ठीक है, दूसरा केस जो है, मैं इनका तो मैं भी वो दिखा देता हूँ एक, लेट मी जस्ट शो यू अ नाइस सिमुलेशन सो दैट इट विल बी मोर कॉन्क्रीट इन योर हेड। केस 2 जो है, केस बी जो है, वो है क्रिटिकल डैम्पिंग, critically damped, which is not really a case, it is just a dividing line between over damping and under damping. क्रिटिकली डैम्प्ड केस में भी होता है कि कोई ऑसिलेशन नहीं होती है। ऑसिलेशन नहीं होने का मतलब है कि मीन पोजीशन क्रॉस नहीं होती है, एंड देयर इज अ फास्टर रिटर्न टू मीन पोजीशन। मतलब कि कंपेयर टू द ओवर डैम्प्ड केस होगा, इसमें भी एसिम्प्टोटिक अप्रोच टू मीन पोजीशन है, लेकिन दिस इज अ मच फास्टर approach to mean position. You can see, compare this graph to this graph. ठीक है, तो इसमें भी कोई ऑसिलेशन नहीं होती है और एसिम्प्टोटिक अप्रोच टू मीन पोजीशन होती है। So naturally, if you want to design a better door, you probably want to make it critically damped because it will return quickly to mean position but not overshoot. You don't want it to overshoot in case it hits somebody on the other side, but you do want it to shut as quickly as possible without overshooting. ठीक है, और केस सी जो है is the only case where any oscillation will occur. This is called the under damped case. Gamma equals to 1 को हम लिख सकते हैं b square equals to 4m के भी, तुम चाहे ऐसे याद रख लो चाहे ऐसे याद रख लो।
गामा लेस देन 1 को हम लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 1 को लिख सकते हैं बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4m के, मतलब हैवी डैम्पिंग है। और लाइट डैम्पिंग अगर है तो वो होता है गामा लेस देन 1, या जिसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर लेस देन 4m के, इधर वे। ये अकेला केस है जिसमें ऑसिलेशन होती है, ठीक है। और इसमें जो ऑसिलेशन होती है वो, उसमें एम्पलीट्यूड जो है टाइम के साथ डिक्रीज होता है, और ये आता है तुम्हारे पास फाइनली, बेसिकली ये मोशन होता है, मतलब ऑसिलेशन with exponentially decreasing amplitude. And frequency of oscillation is slightly smaller than the natural frequency of the system. तो oscillate तो करेगा, लेकिन उस रैपिडिटी से ऑसिलेट नहीं करेगा जिस रैपिडिटी से वो अनडैम्प्ड केस में ऑसिलेट करता है, राइट? यू ऑल अंडरस्टैंड? और जो इसका एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ डीके करेगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एम्पलीट्यूड जो है खत्म हो जाएगा। तो इसमें जो है ऐसा मोशन हो जाएगा। मैं ग्राफ बना देता हूँ, यहाँ पे बना देते हैं। तो जब तुम इसको छोड़ोगे तो ये करेगा, मतलब पहले तो बेसिकली मैं इसका एनवेलोप बना देता हूँ। इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो एक्सपोनेंशियल डीके करेगी, फंक्शन नहीं है एक्सपोनेंशियली डीकेइंग, एम्पलीट्यूड है एक्सपोनेंशियली डीकेइंग, बट विद इन दैट देयर इज ऑसिलेशन अकरिंग। ये है इसका मोशन, which is the more realistic kind of oscillation that you would ordinarily see in daily life, because daily life में हमारा कहीं ना कहीं जो है वो ऑसिलेशन हो ही रही होती है, लेकिन वो इस टाइप से ऑसिलेशन हो रही होती है। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? यू आर अंडरस्टैंड दिस? यस सर। इसका मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ, देखो, that will be the best way to understand the distinction between the three cases. Let's see if I can find it. हाँ, ये देखो, you are able to see the screen? ये जो है ये हम अभी बाद में पढ़ेंगे, ये ड्रिवन ऑसिलेटर है, ये फोर्स लगा हुआ है, तो पहले मैं इसको नन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सिर्फ डैम्प्ड ऑसिलेशन है। सिमुलेशन स्पीड को थोड़ा कम कर देते हैं, और डैम्पिंग को मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, देख रहे हो तुम लोग? अब अगर मैं इसको मान लो पहले रीसेट करते हैं, अब अगर मैं इसको पुल करता हूँ इतना से, तो तुम देख सकते हो ये है अंडर डैम्प्ड केस, सो यू कैन सी दैट द एम्पलीट्यूड इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ये जो इसमें तुम्हें दिख रहा होगा ना, इसका एनवेलोप, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड है। ये हमारा अंडर डैम्प्ड केस है, देखो यहाँ लिखा भी है नीचे अंडर डैम्प्ड। ये वही प्रॉपर्टी है जिसकी बात हो रही है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको क्रिटिकली या ओवर डैम्प करता हूँ, रीसेट मास पोजीशन एंड लेट मी इंक्रीज द डैम्पिंग, सो यू कैन सी नीचे जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ डैम्पिंग, नीचे तुम देख रहे होगे वो अंडर डैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड है, अभी अंडर डैम्प्ड है, अभी भी अंडर डैम्प्ड है। लेकिन ऑब्वियसली जितना डैम्प ज्यादा हो जाएगा, अभी भी वाइल रिमेनिंग अंडर डैम्प्ड, if I increase the damping then it decays much more rapidly, you can see, देखो जरा सा ऑसिलेट करके कहानी खत्म हो गया। ऑसिलेट ये किया, लेकिन क्योंकि डैम्पिंग ज्यादा है तो काफी रैपिडली डीके हो गया इसका एम्पलीट्यूड। डैम्पिंग अगर कम कर दोगे तो थोड़ा टाइम के बाद डीके होगा, देखो it still manages to do at least like 10-15 oscillations before it is like indistinguishable from no oscillation. But these are all cases of under damped motion, because in all of these cases there is still oscillation. Even in this case
where there is still heavy damping, देखो अभी मैं बहुत damping कर देता हूँ, लेकिन तभी भी under damped है, तुम देख रहे हो नीचे under damped लिखा हुआ है, तो अब barely oscillate करेगा मगर कर रहा है, it at least overshoots the mean position. You can see once, twice, thrice, and then end of story. Once it goes over that value, once it becomes over damped, then you can see it doesn't overshoot. देखो, doesn't overshoot. Return to mean position. Right? There is no overshoot. If there is no overshoot, there is no oscillation. It is simply a return to mean position. And the more damping I put, the more slow the return to mean position. This is highly overdamped. So you can see. ये देखो, slower return to mean position. यही जो ग्राफ मैंने बनाया है, अगर मैं ऊपर खींच के करूंगा तो तुम देख सकते हो, ये है slower return to mean position. If I do overdamped but still not so damped, just barely overdamped, then it's a much faster return to mean position, but still only a return to mean position. The moment it goes under, there is some overshoot. There will always be overshoot when, अब ठीक है, यहाँ पे इनका इतना clear simulation नहीं है, तो under damp दिखा रहा है लेकिन overshoot नहीं कर रहा. But once I go under, there is overshoot, maybe tiny amount of overshoot, but there is overshoot. The less damping I make, the longer it is able to oscillate, the less rapidly the amplitude decays. The lighter the damping, the longer it is able to oscillate with a similar. If I take damping to 0, then you have standard SHM with a constant amplitude and no damping. ठीक है, सारे केसेस समझ में आ गए सबको? ऑल राइट, तो अब इसमें जो है एक चीज ये पता होनी चाहिए कि जो हमारा ये क्रिटिकल अंडर डैम्प्ड ऑसिलेटर है, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमको पता होनी चाहिए. बाकी दोनों केसेस में तो एक्चुअली ऑसिलेशन हो ही नहीं रही है, तो बस सिर्फ ये है कि कॉन्सेप्चुअली यू शुड नो कि हाँ ठीक है भाई, वापस आ जाता है, कहानी खत्म हो जाती है. लेकिन जो तुम्हारा अंडर डैम्प्ड केस है उसमें क्या है कि एक तो एम्पलीट्यूड तुम्हारा टाइम के साथ वेरी करता है. मतलब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं, इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं हम प्रॉपरली इस केस के लिए. यहाँ लिख देते हैं, फॉर द अंडर डैम्प्ड केस में लिख रहा हूँ ये xt. तो xt जो है ये अंडर डैम्प्ड का ही है. xt जो तुम्हारा बनेगा वो बनेगा वॉट एवर ए, वो तो ए तो तुम डिसाइड करते हो हमेशा, वो तो रेगुलर अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में भी ए तुम ही डिसाइड करते हो, कितना से खींचोगे तो उससे डिसाइड हो जाएगा ए कितना. a into, फिर there is an exponential decay of the amplitude with time, so that will become e to the power minus gamma omega naught t, and then there is a sign, and that is 1 minus gamma square omega naught t plus 5. ये ओमेगा नॉट बाहर है रूट के, ठीक है. तो एक तो तुम ये वाला पार्ट देख सकते हो, एक तो साइन फंक्शन है, वो तो साइन फंक्शन तो है ही, लेकिन उसका एनवेलोप जो है वो ये एक्सपोनेंशियल डीके है. आर यू ऑल फॉलोइंग दिस? यस सर. ठीक है, ए से अगर तुम स्टार्ट करोगे तो ऐसे ऐसे करके डी, और साथ में तुम ये देख सकते हो कि जो इसका ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी है वो ये क्वांटिटी है. आई मीन यू कुड से दैट दिस इज सम ओमेगा प्राइम. सो ओमेगा प्राइम is actually 1 minus gamma square omega naught, which is obviously smaller than omega naught, slightly smaller than omega. So इसकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ी कम होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से. अगर एकदम अनडैम्प्ड होता तो काफी रैपिडली ऑसिलेट कर रहा होता, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा स्लोली ऑसिलेट कर रहा होता है. That's one thing. And also amplitude, instead of being a constant a, instead of being not dependent on time, मतलब अगर इसी में तुम स्पेशल केस लगा दो, इसी पे लगा दो स्पेशल केस कि भाई डैम्पिंग ही नहीं है, डैम्पिंग नहीं है तो गामा जीरो है, तो गामा जीरो हो गया तो ये ओमेगा नॉट हो गया, और गामा जीरो हो गया तो ये 1 हो गया, तो वो तुम्हारा स्टैंडर्ड ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5 बन गया. ठीक है, बट इन दिस केस दिस पार्ट इज योर ए नॉट ई की पावर, ए नॉट मतलब स्टार्टिंग में जो भी रहा होगा, अगर ये ए नॉट है तो माइनस गामा ओमेगा नॉट टी, this function, the decay of the amplitude. So sometimes in this underdamped case they might ask you numerical problems related to this fact that the amplitude is an exponentially decaying amplitude, क्योंकि एनर्जी जो है ऑसिलेशन की वो भी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है. यहीं से इनफैक्ट वेव्स का स्टोरी में भी आता है कि उसकी इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि एसएचएम की एनर्जी भी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है. इफ यू रिमेंबर एसएचएम हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट, या हाफ के ए स्क्वायर.
तो it's proportional to the amplitude का square, but over here in the underdamped oscillator the amplitude itself is decaying with time, so the energy, you can say the energy also, you might get a numerical problem on this kind of thing. One second. कि पहले जो एनर्जी रहा होगा स्टार्टिंग एनर्जी कितना रहा होगा, अगर स्टार्टिंग एनर्जी जो है E नॉट विल बी प्रोपोर्शनल टू A नॉट स्क्वायर, है ना? तो मतलब कि भाई E नॉट स्क्वायर equals to let's say alpha A नॉट स्क्वायर, alpha being some constant. ठीक है, तो therefore E at t square must be proportional to A at t square, energy at some time. Since A at t हम देख चुके हैं is A नॉट e की पावर माइनस गामा ओमेगा नॉट t, therefore energy, sorry energy स्क्वायर कह रहा हूँ, energy आवाज आ रहा है तुम लोग को? Are you guys able to hear me? Yes. ठीक है, तो ये हो गया, which basically मतलब प्रोपोर्शनलिटी सेम रखते हुए you could say that energy at time t is energy at time 0 into e की पावर minus 2 gamma omega naught t. That's another relationship that's useful. So they can give you numerical, basic numerical questions. इन सब topics में basic questions ही आते हैं. Topics जो हैं वैसे technically ज़्यादा complicated topics हैं, लेकिन इन पे जो questions होंगे बहुत basic आएंगे. कि in how much time does the oscillator lose 50% of its energy? In how much time does it lose 90% of its energy? They're really basic problems, but you have to understand how to do them, right? They're all very formula based. तो damped oscillator में तो basic concepts ही हैं, 3 cases हैं, गामा की वैल्यू पे डिपेंडेंट और ये एनर्जी का गेम है इधर में. एक लास्ट चीज इसमें और है, मैं बता देता हूँ क्विकली, फिर खत्म करते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड द क्यू फैक्टर. दिस इज आल्सो ओनली फॉर द अंडर डैम्प्ड केस. ठीक है, क्यू फैक्टर फॉर द अंडर डैम्प्ड सिस्टम. Q factor is basically quality factor. और Q factor का जो डेफिनेशन होता है रादर डेफिनेशन जाने दो, बस वैल्यू पकड़ लो. Q फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो 1/2 गामा होती है सिंपली. इसीलिए गामा इतना कन्वीनियंट नोटेशन है क्योंकि वो बहुत जगह पे बहुत अच्छे से फिट हो जाता है बहुत सारी चीजों को करेक्टली डिस्क्राइब करने के लिए. सो Q फैक्टर इज सिंपली 1/2 गामा.
एंड एक सेंस में क्यू फैक्टर बताता है कि कितना रैपिडिटी से इसका एनर्जी कम हो रहा है या कितना देर तक ये एक गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ ऑसिलेट कर सकता है। जितना गामा ज्यादा होगा, जितना गामा ज्यादा होगा उतना क्यू फैक्टर कम होगा, उतना ज्यादा डैम्प्ड सिस्टम होगा, उतना रैपिडली इसका एनर्जी डीके करेगा, उतना रैपिडली इसका एम्पलीट्यूड डीके करेगा। जितना गामा कम होगा उतना क्यू फैक्टर ज्यादा होगा, उतना स्लोली एनर्जी डीके करेगा, उतना स्लोली एम्पलीट्यूड डीके करेगा। तो रफली स्पीकिंग क्वालिटी फैक्टर भी यही कैरेक्टराइज कर रहा होता है कि कितना देर तक कितना सस्टेनेबल ऑसिलेटर है, गिवन दैट कि ये डैम्प्ड ऑसिलेटर है, कितना सस्टेन्ड इसका मोशन हो सकता है। Obviously, the best possible Q factor is for the undamped system, the non-damped system, because the damping नहीं है, zero है, तो quality factor infinite है। तो वो तो idealized system है, उसकी quality infinite है क्योंकि वो infinitely long sustain होता है। लेकिन एक तरीके से ये उस चीज को characterize कर रहा है। Relative to the undamped system, how poor an oscillator is this? Does it make sense to all of you? Do you understand? ठीक है, all right. तो यही theory है इसका। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का यही थ्योरी है। अब इसके बाद जो है, सॉरी, डैम्प्ड ऑसिलेशन का यही थ्योरी है। इसके बाद जो है डैम्प्ड ड्रिवन ऑसिलेशन है कि अगर हम इस पे एक फोर्स भी लगा दें अपनी तरफ से तो क्या होगा कि डैम्पिंग तो चल ही रहा है और ऊपर से एक फोर्स भी इस पे ऑपरेट कर रहा है जो बार बार इसको मूव कर रहा है, तो उससे जो मोशन प्रोड्यूस होगा वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस कर लेंगे। दैट विल बी द एंड ऑफ दिस टॉपिक आल्सो। इट्स अ क्विक टॉपिक। ठीक है, ऑलराइट। Any questions in this? हाँ, बोल। सर वो ब्रूस्टर्स एंगल का आप समझा सकते हो, वो विंडोज वाला एग्जांपल? बेसिकली पोलराइज्ड लाइट है, लाइट अनपोलराइज्ड है। अनपोलराइज्ड लाइट जो सन से आती है वो काफी ब्राइट होती है और काफी ब्लाइंडिंग होती है। तो ब्रूस्टर्स एंगल बस ये कह रहा है कि किसी भी सरफेस पे जब लाइट एक करेक्ट एंगल पे गिरती है, अनपोलराइज्ड लाइट, तो वो रिफ्लेक्ट होके पोलराइज हो गई होती है। तो वो जो एंगल है वो ऐसे एंगल है कि जिसपे आने पे रिफ्लेक्टेड लाइट और अंदर की तरफ रिफ्रैक्टेड लाइट म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। उस एंगल पे यदि ये लाइट गिरेगा सरफेस पे तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो पोलराइज हो गया होगा। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को उस सरफेस का ब्रूस्टर एंगल कहते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली ये कंडीशन लगा दो जो उसकी डेफिनेशन है कि ब्रूस्टर एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पे रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो वो कंडीशन लगा के हमने उसका वैल्यू निकाल लिया, tan इनवर्स ऑफ μ2/μ1। सर हाँ, नहीं मेरे को वो विंडो में आप बोल रहे थे ना कि ग्लास है, नहीं वैसा लगेगा, वो नहीं समझा वो क्यों है? हाँ, वही बात बता रहा था ना कि अगर तुम मान लो ये विंडो है और तुम इधर से खड़े होकर देख रहे हो उसको और सनलाइट आ रही है उस पे, तो जनरली क्या है कि सनलाइट बहुत ब्लाइंडिंग होती है, अनपोलराइज लाइट होती है, तो तुम्हें बहुत ग्लेयर दिखेगा इसमें विंडो में और अंदर का नहीं दिखेगा, अंदर कोई है वो नहीं दिखेगा तुम्हें। ये तो देखा ही होगा तुमने, विंडो में बहुत ब्राइट होता है और अंदर का नहीं दिखता है हाँ डे लाइट में। लेकिन अगर ये इसका ब्रूस्टर एंगल हुआ तो जो लाइट तुम्हारी तरफ आएगी वो पोलराइज्ड होगी। तो पोलराइज्ड लाइट जो है ब्लाइंडिंग ग्लेयर टाइप नहीं होता है। जैसे सन ग्लासेस में से जो लाइट आती है वो क्यों नहीं ब्लाइंडिंग ग्लेयर होती है? क्योंकि वो पोलराइज हो गई होती है। अगर तुम डे लाइट में ओशन को देखोगे या किसी लार्ज वाटर बॉडी को देखोगे तो काफी ब्लाइंडिंग होता है ना, देख नहीं पाते उसको, उसमें से बहुत ग्लेयर आ रहा होता है। अगर तुम ओशन को या लेक को या किसी भी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर जिसमें पानी मूव कर रहा है उस पर सनलाइट डायरेक्टली पड़ रही है तो उसको देखने में बहुत ग्लेयर आता है। अगर मान लो ओशन में कोई बोट चल रही है तो हो सकता है तुम्हें दिखे भी नहीं उस ग्लेयर में। लेकिन जब तुम सन ग्लासेस लगा के ओशन को देखते हो तो तुम्हें वेव्स क्लियरली दिखते हैं, बोट वोट सब साफ दिखता है। तो वो इसलिए होता है। या इवन स्काई को डायरेक्टली देख लो, अगर तुम डे टाइम में स्काई को देखते हो तो क्लाउड को देखने में भी तुम्हें, सन को डायरेक्टली देखना नहीं बोल रहा हूँ मैं, तुम एक क्लाउड को देख रहे हो मगर वो भी नहीं देख पाते हो, ब्लाइंडिंग सा हो जाता है। लेकिन सनग्लासेस लगा के एकदम ब्लू स्काई ब्लू दिखता है और क्लाउड एकदम आउटलाइन दिखता है व्हाइट, तो ग्लेयर खत्म हो जाती है। तो ग्लेयर खत्म हो जाती है क्योंकि वो पोलराइज कर देता है। तो अगर ग्लेयर खत्म हो जाती है पोलराइजेशन से, तो क्योंकि यहाँ पे भी पोलराइज हो जा रही है तो ग्लेयर खत्म हो जाएगा। हाँ सर समझा। ठीक है, सर मतलब वो ग्लेयर इसीलिए ब्लाइंडिंग है क्योंकि वो अनपोलराइज्ड है, मतलब। करेक्ट, यस। ठीक है, चलो फिर खत्म करते हैं आज की। सर तो वो अनपोलराइज्ड मतलब ब्लाइंडिंग क्यों होता है वो नहीं समझा। वो अलग कहानी है।
है वो तो बहुत डिटेल है, गूगल करके देखो थोड़ा सा, why is it that unpolarized light produces a sensation of glare in our eyes, it has a lot of biology also.